Good morning, students. I'm Amit, your political science teacher, and I will teach you political science in class 11. So, from today, we start our syllabus with political theory, the chapter 1 and introduction to the political theory. So, start with this chapter. So, first we start with the introduction. Human beings are unique in two respects. Means, first, how human beings are unique, how they are different from the other species. First, they possess reasons, the ability to reflect on their actions. So these are the two aspects in which human beings are different from other species. Moreover, they also have the capacity to use language and communicate with each other. Like human beings, they have language, they can communicate with each other, they can share their views, they can share their ideas with each other. Unlike other species, they can express their ideas and discuss what they consider to be good and desirable. So, with the help of the language, they can express their ideas and discuss what they consider to be good and desirable. Means what is good and bad for them. They can make a difference between good and bad. Political theory has its root in these twin aspects of the human self. So political theory जो कि हम अभी स्टडी करेंगे, उसकी बेसिक रूट्स इन ये जो दो एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन बींग्स की, विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्पीसीज, इसमें उनकी रूट्स में है. Political theory analyze basic questions such as which questions? First question, how society should be governed, like organized. Like we are the part of the society, we live in a society, so the basic question is how society should be organized. Means जो society है उसको कैसे organize करना है. Means we need certain rule and regulations to organize the society. Society को organize करने के लिए हमें कुछ ना कुछ rule and regulations चाहिएंगे. Because like in society we have majorities, we have minorities. If we don't have some rule and regulations, तो मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी को रूल करेगा, स्ट्रॉन्ग पर्सन जो है वो वीक पर्सन को रूल करेगा. सो वी नीड सर्टन काइंड ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस, और वी कैन से सर्टन काइंड ऑफ लॉज टू ऑर्गेनाइज द सोसाइटी. द सेकंड क्वेश्चन हियर इज व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट. कि भैया हमें सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें गवर्नमेंट की क्यों जरूरत है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट. लाइक वी कैन not take the decisions directly because it is not possible for all the people to take the decisions. So to take the collective decisions, हमारे behalf पे कोई ना कोई एक collective decision ले सके, हमारे लिए कोई पॉलिसीज फ्रेम कर सके, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज, तो हमें किसकी जरूरत है? हमें चाहिए एक गवर्नमेंट. हमें एक गवर्नमेंट चाहिए जो कि अपने सिटीजन्स के बिहाफ पर डिसीजन ले सके, उनकी लाइफ को बेटर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज लेके आए. थर्ड क्वेश्चन है विच इज द बेस्ट गवर्नमेंट. अब क्वेश्चन आता है कि कौन सी गवर्नमेंट जो है वो बेस्ट है, बिकॉज वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट, बेसिकली लाइक डेमोक्रेसी, मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. इनमें से कौन सी जो है गवर्नमेंट है वो बेस्ट है, कौन सी गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को ज्यादा फ्रीडम देती है या फंडामेंटल राइट्स देती है, और विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट, लाइक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो दिस इज द क्वेश्चन है कि भाई कौन सी गवर्नमेंट जो है वो बेस्ट है. Then does law limits our freedom? So in the first question we discuss how society should be organized. So to organize the society what we need? We need certain kind of rule and regulations. अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, does law limit our freedom? कि जो लॉ गवर्नमेंट ने जो लॉ इम्पोज किए हैं सोसाइटी के ऊपर उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्या उससे हमारी फ्रीडम लिमिट होती है? द फ्रीडम जो है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस आती हैं? डज वी रियली नीड सर्टेन काइंड ऑफ लॉ? यस, वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ लॉ बिकॉज टू मेक अ बैलेंस इन द सोसाइटी देयर शुड बी सम रूल एंड रेगुलेशंस एंड देयर शुड बी सम लॉज टू फॉलो. कुछ ना कुछ लॉ सोसाइटी में होने चाहिए जिससे कि हम एक बैलेंस जो है मेंटेन कर सकें सोसाइटी के अंदर.
सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द स्टेट ऑफ इट्स सिटीजन्स। इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कि एक स्टेट हियर मीन्स द गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट का अपने सिटीजन्स के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। लाइक अगर हम बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो एक गवर्नमेंट की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो अपने सिटीजन्स को बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज और बेटर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करे अपने सिटीजन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज वी ओ ईच अदर एज सिटीजन्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि भाई गवर्नमेंट की सिटीजन्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट सिर्फ गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सोसाइटी में, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिटीजन एक दूसरे के लिए, दैट हाउ वी कैन ऑर्गेनाइज अ बेटर सोसाइटी, और हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक दूसरे के लिए एज अ सिटीजन। सो इन सभी क्वेश्चंस को हम जो है डिस्कस करेंगे। Political theory also examines questions of this kind and systematically thinks about the values that inform political life. So political theory सिर्फ analyze ही नहीं करती, examines भी करती है questions of this kind, इस तरह के क्वेश्चंस को सिस्टमेटिकली, और फिर कंक्लूजन निकालती है कि कौन सी वैल्यूज जो है वो हमारी पॉलिटिकल लाइफ को इफेक्ट करते हैं, लाइक वैल्यूज सच एज फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस। इन सभी वैल्यूज के ऊपर जो है पॉलिटिकल थ्योरी जो है सिस्टमेटिकली फोकस करती है। सो अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज पॉलिटिक्स। द बेसिक क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज पॉलिटिक्स, कि भी पॉलिटिक्स है क्या। और जब हम पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, whenever we talk about the politics, we have different definitions of politics. Even different people have different definitions of politics. Some have a negative image of politics, some have a positive image of a political. So in this slide, we will discuss what is politics basically. Politics. So people have different ideas about what politics is. So different people have different ideas about the politics. पॉलिटिकल लीडर आर्ग्यू दैट इट इज अ काइंड ऑफ पब्लिक सर्विस। अगर हम किसी पॉलिटिकल लीडर से जाके पूछते हैं कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, तो उनका सीधा सा एक सिंपल सा आंसर होगा कि पॉलिटिक्स जो है वो पब्लिक सर्विस है। वी आर हेयर इन द पॉलिटिक्स टू सर्व द नेशन, वी आर हेयर इन द पॉलिटिक्स टू सर्व द पीपल। वो सीधे बोलेंगे कि हम पॉलिटिक्स में हैं हमारी पब्लिक को सर्व करने के लिए, टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज टू आवर पब्लिक। तो दे हैव अ डायरेक्ट आंसर दैट पब्लिक सर्विस, एंड दे रिलेट द पॉलिटिक्स टू द public service. Some associate politics with manipulation to satisfy wants. कुछ एक ऐसा सेक्शन भी है सोसाइटी का जो कि पॉलिटिक्स को किससे रिलेट करता है, मैनिपुलेशन से रिलेट करता है। वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो मैनिपुलेशन है, जो स्मार्ट लोग हैं वो मैनिपुलेशन करते हैं किसके लिए, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये जो है एक नेगेटिव इमेज लेके आते हैं पॉलिटिक्स की। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ऑफिस में एक एम्प्लॉय अपने सुपीरियर को प्लीज करके ही गॉट सम काइंड ऑफ प्रमोशन और हाइक इन सैलरी, तो अदर एम्प्लॉयज हैं जो उसके कुलीग्स हैं वो उसको सिंपली बोलते हैं कि ही इज वेरी स्मार्ट पर्सन एंड ही नो द पॉलिटिक्स, और वो मैनिपुलेशन करके अपने सेल्फ इंटरेस्ट को जो है एक्वायर कर लेते हैं। फ्यू थिंक ऑफ पॉलिटिक्स एज व्हाट पॉलिटिशियन डू। कुछ एक सिंपल है, एक सेक्शन है सोसाइटी का जो कहते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स इज नॉट फॉर द कॉमन पीपल। पॉलिटिक्स का कॉमन पीपल से कोई लेना देना नहीं है, ये क्या है पॉलिटिशियंस के लिए, जो पॉलिटिशियंस करते हैं दैट इज पॉलिटिक्स। सम लिंक पॉलिटिक्स विद स्कैम्स। कुछ लोग हैं जो पॉलिटिक्स को डायरेक्टली जो है स्कैम्स के साथ रिलेट करते हैं। ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी रिलेट द पॉलिटिक्स विद द स्कैम्स। लाइक प्रायर टू इलेक्शंस जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो बहुत सारे जो है लुक्रेटिव ऑफर्स देते हैं लोगों को, एंड इफ दे विल नॉट फुलफिल देयर लाइक अपने उनको फुलफिल नहीं करते हैं तो लोग जो है उनको क्या कहते हैं, स्कैम बोल देते हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने बहुत बड़े स्कैम किए हैं। वी नीड टू रियलाइज दैट पॉलिटिक्स इज एन इम्पोर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ any society. So from the above points we can say that politics is an integral and important part of our society. Every society has some kind of politics, और politics जो है वो बहुत ही integral part है हमारी society का। So this is basically the definition of politics, the basic definition we can say of politics.
पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ पावर और द स्ट्रगल फॉर पावर। बेसिकली पॉलिटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ पावर। स्टडी ऑफ पावर हेयर मीन्स द स्टडी ऑफ द वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी स्टडी जो है दैट इज पॉलिटिक्स। और द स्ट्रगल फॉर पावर, लाइक वी हैव डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री एंड व्हाट इज द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी। सभी पॉलिटिकल पार्टीज का अगर हम एम की बात करें, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की अगर हम एम की बात करें तो उनका एक ही एम है, टू गेट द पावर। पावर में आना ही हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एम है। सो इन द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स वी कैन से दैट पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ पावर। पावर की स्टडी करना और द स्ट्रगल फॉर पावर। नाउ in the previous slide we discussed about some negative aspects of the politics, but it is also equally true, ये भी बिल्कुल ट्रू है, no society can exist without some form of political organizations and collective decision making। कोई भी सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती सम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। वी नीड सम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सोसाइटी। What kind of political organization? Like, we cannot take our own decisions. Own decisions means that if there is a decision related to our national interest, then who will take the decision? It is not possible that all the people come together and sit at one place and take the decision for the national interest. So we need a kind of government to take all these decisions, and that government can take the collective decision on behalf of the people of the कंट्री। सो ये इक्वली ट्रू है कि कोई भी सोसाइटी जो है वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अ नंबर ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज फैमिली, ट्राइब्स एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हैव emerged to help people fulfill their needs and aspirations। सो ए नंबर ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि टाइमली इमर्ज हुए हैं टू हेल्प पीपल एंड टू फुलफिल देयर नीड एंड एस्पिरेशंस। सो वी नीड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। अब हमें क्यों चाहिए हमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन? क्या इंपॉर्टेंस है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की? हमारी नीड्स और हमारी एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए वी नीड सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। Such institutions help us find ways of living together, acknowledging and our obligations to each other. So what is the role of these institutions? जो political institutions हम discuss कर रहे हैं, उन political और economic institutions हैं, उनका क्या role है basically? तो ये basically such institutions help us find ways of living together, our obligations to each other। यही institutions हैं, ये जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वेज ऑफ लिविंग टुगेदर हमारे जो है ये फाइंड आउट करते हैं और हमें हेल्प करते हैं एक स्मूथ लाइफ जो है स्पेंड करने के लिए। हाउ गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड एंड हाउ दे फंक्शन इज दस एन इम्पोर्टेंट फोकस ऑफ पॉलिटिक्स। सो पॉलिटिक्स का जो मेन इम्पोर्टेंट जो फोकस है वो क्या है? हाउ गवर्नमेंट्स आर फॉर्म, भाई गवर्नमेंट्स कैसे बनती हैं एंड हाउ दे फंक्शन, और वो कैसे काम करती हैं। Like if we take the example of our country, how governments are formed. In our country, governments are directly elected by the people of the country. हम directly अपनी government को जो है elect करते हैं and how they function. अब क्वेश्चन आता है कि once we elected the government, now government has all the powers to take the decision. They can take any kind of decision. कि भाई अब सारी जो है पावर वो किसके पास आ गई है? गवर्नमेंट के पास आ गई है। और अब तो गवर्नमेंट क्या है, कोई भी डिसीजन ले सकती है, कोई भी पॉलिसी बना सकती है। क्या गवर्नमेंट की पावर्स पे भी कोई लिमिट है? क्या गवर्नमेंट की पावर्स पे भी कोई लिमिटेशन है? क्या गवर्नमेंट की एक्शंस को भी कोई वॉच कर रहा है? यस, एग्जैक्टली। गवर्नमेंट जो है ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट जो है फ्रीली कोई भी एक्शन अपना ले सकती है या कोई भी फंक्शन कर सकती है। गवर्नमेंट्स की पावर पे भी लिमिट्स हैं। कौन लिमिट करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में हैं वो गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है। बट पॉलिटिक्स इज नॉट कन्फाइंड टू द अफेयर ऑफ द गवर्नमेंट। बट पॉलिटिक्स जो है सिर्फ हम पॉलिटिक्स को गवर्नमेंट के अफेयर्स तक ही जो है लिमिट नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स इससे भी ज्यादा है। लाइक हमने डिस्कस किया था स्ट्रगल फॉर पावर। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दे स्ट्रगल टू कम इनटू द पावर। वो हमेशा स्ट्रगल करती हैं कि वो पावर में आए और अपनी गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करें।
In fact, what government do is relevant because it affect the life of the people in many different ways, like their economic policy, foreign policy, educational policy affects people lives. So जितने भी गवर्नमेंट के डिसीजन हैं वो हमसे डायरेक्टली रिलेटेड हैं. गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है वो इन वन एंड अदर वे हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं. लाइक गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को कोई लेके कोई डिसीजन करती है, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज को लेके कोई डिसीजन लेती है, या एजुकेशन फैसिलिटीज को लेके, एजुकेशन पॉलिसीज को लेके कोई भी जो है डिसीजन लेती है, जो कि हमारी लाइफ को डायरेक्टली जो है अफेक्ट करते हैं, रिलेटेड होते हैं हमारी लाइफ से डायरेक्टली. सिंस द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट अफेक्ट अस डीपली, पीपल टेक ए लाइवली इंटरेस्ट इन व्हाट गवर्नमेंट डू. सो जो एक्शन है गवर्नमेंट के वो हमें डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं. कोई भी गवर्नमेंट एक्शन लेती है, चाहे वो सैलरी हाइक को लेके हो, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज को लेके हो, या एजुकेशन पॉलिसीज को लेके है, या बेटर मेडिकल फैसिलिटीज को लेके है. डिफरेंट पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट की आती रहती हैं. चाहे वो पेट्रोल और डीजल के प्राइस हाइक है, एलपीजी प्राइस हाइक है, वो कोई भी डिसीजन है गवर्नमेंट का वो हमें डायरेक्टली इफेक्ट करता है. सो इसलिए हम उसमें जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि भाई डेली डीजल और पेट्रोल जो है उसके प्राइस जो है बढ़ते जा रहे हैं, तो हम डेली देखते हैं क्योंकि हमारी लाइफ को जो है डायरेक्टली जो है इफेक्ट कर रहा है. तो हम उसके लिए बहुत ज्यादा डीपली कंसर्न है कि कल कितना प्राइस था, आज कितना हो गया, क्यों गवर्नमेंट इसको लिमिट नहीं कर रही, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस. तो जो जितने भी एक्शन है गवर्नमेंट के वो हमें डायरेक्टली जो है इफेक्ट करते हैं. When people disagree with the policies of the government, we protest and organize demonstrations to persuade the government to change the existing laws. But we are in a democratic country, we have fundamental rights. So, अगर हमें किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे लगता है कि गवर्नमेंट जो है, और वी आर डिसएग्री विद द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, हमें लगता है कि ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ये जो है बेनिफिट नहीं है इसका कंट्री को, या ये पीपल के बेनिफिट के लिए नहीं है, और हम उससे डिसएग्री कर रहे हैं. सो इन दैट केस वी कैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज. हम गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं बिकॉज वी आर इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, वी हैव सर्टेन काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच. लाइक अभी रिसेंट एग्जांपल हम इसको लेके लेते हैं, तो अभी गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया था, सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एक लॉ लेके आई थी गवर्नमेंट, और एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है सोसाइटी का वो जो है उस लॉ से सेटिस्फाइड नहीं था. दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट लॉ एंड दे स्टार्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लॉ different part of the country. And in Delhi we can say the protest was very heavy. सबसे ज्यादा हैवी जो है प्रोटेस्ट कहां पर था, वो दिल्ली में था. What was the reason behind that protest? क्या रीजन था उस प्रोटेस्ट के पीछे? बिकॉज एक लॉ, कौन लेके आया लॉ को? गवर्नमेंट लेके आई लॉ को. और एक सेक्शन जो है सोसाइटी का वो क्या था? ही वॉज डिसएग्री. एक सेक्शन क्या था सोसाइटी का? वो डिसएग्री था. लॉ को लेके आया कौन? गवर्नमेंट. एक सेक्शन सोसाइटी का क्या था? डिसएग्री. उन्होंने क्या किया? प्रोटेस्ट किया. किसके अगेंस्ट? एग्जिस्टिंग लॉ, जो कि गवर्नमेंट लॉ लेके आई है. सो when people are disagree with the policies of the government and laws of the government, we have full right to protest, but peaceful protest. Protest here means peaceful protest. जब मैं protest की बात कर रहा हूं तो वो peaceful protest की बात कर रहा हूं. We have full power for the peaceful protest against the policies of the government. So finally, politics arises from the fact that we have different visions of what is just and desirable for us and our society. So finally, politics arises from the fact that we have different visions. So सोसाइटी में डिफरेंट सेक्शंस हैं और सभी के डिफरेंट विजन्स हैं कि क्या हमारे लिए जस्ट और डिजायरेबल है, क्या हमारे लिए सही है, और हमारी सोसाइटी के लिए क्या सही है और क्या गलत है. व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर आवर सोसाइटी. सो व्हेन एवर we find some conflict with the government policies, we can protest against the government policies. It involves the multiple negotiations that go on in society through which collective decisions are made. Now, how governments take the decisions?
It involves the multiple negotiation that go on in society through which collective decisions are made. Like we are the part of the society, and in society there are multiple negotiations in different sections and society के वो आपस में negotiation करते हैं कि भाई क्या society के लिए जो है better है, और तब जाके जो है collective decisions जो है वो लेना पड़ता है. सेम गवर्नमेंट का है. इट इज नॉट कि भाई गवर्नमेंट है तो वन पर्सन कैन टेक ऑल द डिसीजंस, कि एक ही पर्सन सारे डिसीजन ले लेगा. नहीं, ऐसा नहीं है. इट इज नॉट पॉसिबल. दैट गवर्नमेंट ऑल्सो है मल्टीपल नेगोशिएशंस. बहुत सारी नेगोशिएशन होती है पार्लियामेंट में, जहां पर कि रूलिंग पार्टी एंड पार्टी इन अपोजिशन बैठ के जो है नेगोशिएट करते हैं, एंड फाइनली दे विल रीच टू अ कंक्लूजन. फाइनली दे विल रीच टू अ कलेक्टिव डिसीजन मेड बाय देम. नेक्स्ट. So, students, for today we have discussed what is politics, politics क्या है, what is the role of the government in politics, what is the role of the citizens towards government और society. और हमने डिस्कस किया कि एक सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें जो है we need certain kind of rule and regulations, we need a kind of government. So this is for today, and from tomorrow in the next lecture we will start from what do we study in political theory. हम कल पढ़ेंगे कि हम political theory में बेसिकली किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं और क्या क्या चीज़ें हम जो है पढ़ते हैं. So in this section, if you have any doubts, if you have any queries, you can call me and you can WhatsApp me regarding your topic. So this is the topic of today. We will meet tomorrow. Thank you.